जय श्री राम और जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं आनंद रंगनाथन का वीडियो जो होने जा रहा है तिरुपति के लड्डू के ऊपर। तो फिर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए और अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Dr. Anand Ranganathan, I want to come to you first and I want to understand because every word of this report, and I'm sure you've read this too, is too horrifying. As a devotee of Tirupati Balaji, is this cheating? Is this dishonesty? Or as some of the devotees are saying, is this sin in the eyes not just of God but also his devotees? Good evening, Gaurav, and good evening to my fellow panelists. What you say, of course, is true. It has to be double-checked. But the fact remains, this is calamitous. Tens of thousands, possibly millions of Hindu devotees have been duped into consuming beef fat, not by a restaurant or a food delivery agent, still pardonable because action is taken quickly, but rather by the most sacred of Hindu temples managed by the state. There is no outrage, no arrest. Imagine, had Halim served during a state-sponsored iftar party been cooked in lard, or pork tenderloin been served during government-organized Ramzan Sehri, Gaurav, this country would have witnessed a civil war. But then, this is the country where the holiest of Hindu shrines was demolished by an Islamic invader, and people of his faith still stomp their dirty feet on the sacred relics as they walk inside the place of worship. This is the country where government ministers openly wish to eradicate Sanatan Dharma, call Hinduism as a menace upon the world. Gaurav, Hindus are easy to abuse because they don't behead transgressors. And the irony is that India has been branded a fascist Hindu Rashtra. I want to ask, what sort of a Hindu Rashtra is this? Where communists are controlling Hindu temples, where those who want to eradicate Sanatan Dharma are controlling the temples of Sanatan Dharma? Let there be no doubt. This calamity has happened because the state intervened into even the preparation of the temple prasadam. Contracts were made, tenders were given. This is tied to state control of temples. I won't be surprised if a similar thing is happening for other thousands of state-controlled temples, Gaurav. Why, I ask you, are the communists in Kerala, for whom religion is supposedly the opium of the masses, controlling 3,058 Hindu temples? A Muslim is appointed on Tarkeshwar Temple Board, a Christian on Tirupati Board. Government of just 10 states control more than 100,000 temples. Tamil Nadu government alone controls 36,425 temples. Why? What business is it of the state to levy an administrative charge between 5 to 21% on temples in the name of audit? What business is it of the state to dictate how many times a puja is to be conducted, who is to conduct it, who is qualified to be the priest, what is going to be the procedure of worship? What business is it of the state to control tens of thousands of acres of temple land and then set rent for it? The loss to temples on account of this alone is estimated over decades to be in lakhs of crores. And activist T.R. Ramesh, who has talked on this enormously, Tamil Nadu government is saying should be earning 6,000 crores per annum from 2.44 crore square feet of temple land it controls. And it earns a mere 58 crores, not even 1%. State control of Hindu temples and their property, Gaurav, is by far the largest, financially most damaging scam of independent India. Even using the petroleum sector as a cash cow pales in comparison to this loot, pillaging happening on Hindu temples in the name of secularism. But then I ask you, just a minute. If the Congress can bring in a legislation to control Hindu temples in 1959, one that still stands, why can't the BJP bring in a legislation to override it? Gaurav, if you truly believe that religion should keep out of state, the corollary is equally applicable. That state should keep out of religion, but does it? Absolutely. A Hindu temple, its income, its educational institutions are controlled by and interfered by the government, but those of a mosque, a church are not. Why? Only in India can you step aside and watch as firecrackers are banned on Diwali, but 35 million tons of stubble is happily burned during the same month. When you step aside and watch as sacrifice for Hindu rituals is banned, but the ritual of halal continues. Only in India can you step aside and watch as state appoints non-Hindus on boards that control Hindu temples. Only here will we remain silent as temple idols are stolen, temple property auctioned, and yet call Hindus fascists. Just 10 seconds. Assault on temples, Gaurav, has turned into an assault on Hinduism itself. As Vikram Sampath said, the day is not far when Hindus will be led quietly like lambs to their slaughter. The only difference I like to add is they'll be made to eat beef laddus while they wait their turn at the guillotine.
horrifying, just horrifying if true, as you rightly pointed out. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। पहले दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि हमारा वीडियो का जो इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले आपको पहुंच सके और आप देख सकें। तो फिर ये वीडियो है आनंद रंगनाथन का वीडियो है और ये इंडिया टुडे में डिबेट हो रहा था गौरव सावंत के साथ। तो फिर ये है डिबेट है जो हमारा फेमस साउथ इंडिया का टेंपल है और इंडिया का टेंपल है, जो तिरुपति बालाजी का टेंपल है, वेंकटेश्वराय जी का टेंपल है और भगवान का भोग में जो गांव मांस है, बीफ है, फ़िश ऑयल है और ऐसे जो सात्विक जो नॉन सात्विक इंग्रेडिएंट्स हैं उसको लड्डू में डाला है इन लोगों ने और लोगों को दिया है। और ये भोग भगवान के ऊपर भी चढ़ाया है, लोगों को देने से पहले भगवान के ऊपर भी चढ़ाया जाता है। तो फिर ये नैवेद्य ठीक तरह करके नहीं दिया था और इसके ऊपर कंट्रोवर्सी है क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा कि इससे पहले जो गवर्नमेंट था, टीडीपी से जो पहले गवर्नमेंट था, वो मिस्टर जगन मोहन रेड्डी का था और जगन मोहन रेड्डी इज़ फेमस फॉर बीइंग अ क्रिप्टो क्रिस्टियन और सब लोगों को पता है, पूरे इंडिया को पता है, एटलीस्ट जो राइट विंग के लोग हैं, हिंदुत्व विंग के लोग हैं और जो समझ लीजिए सेंट्रल विंग के भी हैं, उनको भी पता है कि ये जो एक क्रिप्टो क्रिस्टियन प्रॉब्लम है वो आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा हुआ है और इसका सबसे बड़ा हाथ ये YSPRB है, YSCP जो जगन मोहन रेड्डी का पार्टी है और उन पार्टी के लोगों ने मिलकर इसका गलती किया था और इनकी फैमिली के लोग ही उधर बैठे हुए थे और उधर ही ऐसे ही अनर्गल काम कर रहे थे जो नैतिक तरीके से और बौद्धिक तरीके से बिल्कुल ख़राब है। और इसका एक और बनता है कि ये जो टेम्पल्स है ना हमारे, उसको जब तक आप स्टेट के कंट्रोल में रखोगे ना तो फिर यही होता रहेगा। ये ब्यूरोक्रेट्स, जब गवर्नमेंट दूसरा आएगा तो फिर दूसरा गवर्नमेंट अपना चलाएगा और ये गवर्नमेंट तो आपको पता ही है, इनका जो जगन मोहन रेड्डी का जो गवर्नमेंट है, इट हैज़ अ स्पेशल हेट्रेड फॉर हिंदूज़ और वो हिंदू के हेट्रेड के ऊपर उन्होंने हमारा जो बहुत श्रद्धालु और बहुत सेक्रेट सा टेंपल था, उस टेंपल का जो भोग है, जो प्रसाद है, उसको ही इन लोगों ने दूषित कर दिया। दूषित करने के बाद अभी भी झूठ बोल रहे हैं कि हमने नहीं किया। इसका रिपोर्ट आया है, गुजरात का जो लैब है उधर से रिपोर्ट आया है, इन लोगों ने क्या क्या किया है इसके ऊपर और इनके लोगों को कोई और पछतावा नहीं है। ये झूठ बोल रहे हैं पर सब लोगों को पता है कि ये जो जगन मोहन रेड्डी का जो एक क्रिप्टो क्रिश्चियन बनाने का टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा था और इधर ही है जो तिरुमला में, तिरुपति टेंपल में ही ये लोग ऐसे एक्टिविटीज़ कर रहे थे, उधर बैठ के कर रहे थे। इनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और इनके जो फैमिली के मेंबर्स हैं उधर बैठ के हमारे टेंपल के ऊपर बैठ के वो कन्वर्जन्स करा रहे थे और पूरी तरह प्रश्रय था जो फॉरेन के जो मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको पूरी तरह खुली छूट दे दिया था। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो कोस्टल एरिया है उधर भी ये कन्वर्जन एक्टिविटीज़ करने के लिए और कन्वर्जन एक्टिविटीज़ किया भी। तमिलनाडु में तो आपको पता ही होगा, राहुल गांधी गया था, उधर का पेस्टर हमारे भगवान देवी देवताओं को बोल रहा था कि ये भगवान नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, पंजाब में भी अरे सर क्या बात है। एक्टिविटीज़ हो रहा है और ये सब तो होते रहेगा, ये इंडिया में चल रहा है। इसको स्टॉप करने के लिए हमें जो हमारा टेम्पल्स है ना वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, उसको गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर निकालना पड़ेगा और लोगों को देना पड़ेगा। अगर समझ लीजिए लोग इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो फिर लोग कोर्ट में जाके इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं। और इतने भी गए गुजरे नहीं है हमारे हिंदू लोग, उनको भी पता है कि सब हिंदुओं को टेंपल में जाने का अधिकार है और उनको जाने नहीं देंगे तो फिर उधर कोई ना कोई तो होगा जो अपोज़ करेगा और अपोज़ करेगा तो फिर उसका बात सुनते हुए दूसरे लोगों को भी जाने देना चाहिए टेंपल में, हमारे जो दलित भाई बहन है। तो फिर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होगा भी तो फिर उसको रेक्टिफाई करने का तरीका है, उसका रेक्टिफाई करने का तरीका ये नहीं है कि गवर्नमेंट उसके ऊपर बैठ जाए और गवर्नमेंट उधर धांधली करे। और तमिलनाडु में इतने हज़ारों टेंपल है, उस हज़ारों टेंपल में बहुत छोटे छोटे जो टेंपल हैं उनका जो आय है वो बहुत कम है और उसको अपकीप भी नहीं कर सकते हैं। पर बड़े बड़े टेंपल है उससे गोल्ड और ऐसे ऐसे जो आभूषण है उसको मेल्ट करके जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है वो उधर रोड्स
अपना जो स्कूल्स ऐसे ऐसे काम कर रही हैं, जो अगर समझ लीजिए कि एक टेंपल के अंडर ही होता और बड़े बड़े टेंपल्स के अंडर होता, वो छोटे टेंपल को वो फंड करते और स्कूल्स को फंड करते और एजुकेशन को फंड करते। वही अपने ही तरीके से वो जो एक ये डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म करने की कोशिश करते, तो फिर ये सब होता। पर ये सब नहीं करना है इन लोगों को। अभी गवर्नमेंट को करना चाहिए, जैसे पवन कल्याण ने बोला है कि एक सनातन रक्षा बोर्ड, जैसे ये वक्फ बोर्ड है ना, सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। उस बोर्ड में जो भी हमारे टेम्पल्स हैं, हज़ारों टेम्पल्स हैं, साउथ इंडिया के, नॉर्थ इंडिया के, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के और वेस्ट इंडिया के और ईस्ट इंडिया के, सब पूरा जो इंडिया का जो भी टेम्पल मैनेजमेंट है उसको दे देना चाहिए। और मैनेजमेंट मतलब गवर्नमेंट को नहीं देना चाहिए, गवर्नमेंट को एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाना चाहिए। उसमें गवर्नमेंट का कोई भी बंदा नहीं बैठना चाहिए, एक इलेक्टेड बंदे को बैठा देना चाहिए, पर दैट गाय शुडंट हैव एनी पावर। तो फिर ये सब करके आप उधर कर देंगे तो फिर ये जो काम है ये टेम्पल्स ही करेंगे। टेम्पल्स के पास इतना ज़्यादा रेवेन्यू होगा कि ये जो कन्वर्जन एक्टिविटीज़ को है ना, वो ही स्टॉप कर पाएंगे। और उधर से ही स्टॉप हो जाएगा तो फिर ये कन्वर्जन एक्टिविटीज़ भी नहीं होगा और अपना जो रिलीजन है उसको प्रोस्टलाइज भी करेंगे, उसको प्रोपगेट भी करेंगे, जैसे दूसरे रिलीजन्स करते हैं अपने फंड से। जैसे क्रिश्चियन लोग हैं वो अपना कॉन्वेंट्स बनाते हैं और कॉलेजेस बनाते हैं, हॉस्पिटल्स बनाते हैं। कॉन्वेंट्स में ये अपना जो एक्टिविटीज़ है वो भी करते हैं। बहुत सारे कॉन्वेंट्स हैं जहाँ पे नहीं भी करते होंगे, पर बहुत सारे ऐसे भी कॉन्वेंट्स हैं जहाँ पे ये लोगों को हार्वेस्ट करना, इनका जो टेक्निक है ना, ये राइस बैग बनाना, बस लालच दे देना और लोगों को अपने पास लेके आ जाना। अगर हिंदुओं के पास अपना ही टेंपल हो अपने पास तो फिर वो खुद कर सकते हैं, ये सब लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकते हैं ताकि वो दूसरे रिलीजन के पास नहीं जाने का उनको नौबत नहीं मिले। और ये अगर आप ऐसे करोगे तो फिर ये जो दलित डिस्क्रिमिनेशन है ये अंदर से ही ख़त्म करने की कोशिश करेंगे लोग। तो फिर ये करना चाहिए, यही सबसे करेक्ट तरीका है इसको रेक्टिफाई करने का। और रेक्टिफाई ऐसे ही होगा। और देश को आगे बढ़ना है तो फिर ये टेंपल है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। जैसे चर्चेस नहीं है, गुरुद्वाराज नहीं है, जैसे मॉस्क्स नहीं है, ऐसे टेंपल्स भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। और इस केस में जो भी ये जगनमोहन रेड्डी का जो पार्टी के जो फंक्शनरीज थे और ये फैमिली के जो लोग थे इधर बैठे हुए थे हमारे इस देवस्थान बोर्ड में, जो तिरुपति टेंपल का देवस्थान बोर्ड है, उधर बैठे हुए थे, उनको प्रोसिक्यूट करना चाहिए और उनको लॉ के तरीके से बाहर अंदर डालना चाहिए और ब्लास्फेमी को डालना चाहिए उनके ऊपर कि ये पूरी तरह ब्लास्फेमी है। फिर देखते हैं आगे क्या होता है दोस्तों, क्योंकि ये तो लंबा चलेगा और इसके ऊपर और भी वीडियोस बनाएंगे। वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि हमारा वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और आप इसका इन्फॉर्मेशन पा सकें, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख सकें। तो फिर जय श्री राम, जय वेंकटेश्वराया, जय बालाजी, हर हर महादेव एंड